Yeah, so as you can see, I was telling the object is at center of curvature, image is also at center of curvature, size of the image is same as the object, nature is real and inverted. So इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम पे जाएंगे, दैट इज द फोर्थ डायग्राम वेयर वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट और नजदीक लाते हैं हम स्क्रीन के. तो पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर ऑन सी आया. नाउ वी कीप इट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. So these are the same things which we follow, so I'll not explain again and again. Please go through this, understand this. Again over here the light rays एक parallel है, एक focus से pass हो रहा है, तो rule के हिसाब से the reflecting rays are taking place and the reflected rays intersect beyond C. अब इसमें सोचने वाली बात ये है, सॉरी, C ओवर हियर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज कहाँ पे आया था, बिटवीन C एंड F. नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, तो इमेज कहाँ पे आएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ये थर्ड वाला एंड ये फिफ्थ वाला डायग्राम्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. पहले हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C था, तो इमेज इन दोनों के बीच में आया था. नाउ वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F एंड वी सॉ दैट द इमेज इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. Also we see that the size of the image is greater than the size of the object, which means object को आप जितना नजदीक लाते जाते हो, image उतना ही larger form होता है. So if you see over here, between C and F, the object is kept, then the image is formed behind center of curvature and it is magnified, which is true. Magnified का मतलब होता है image बड़ा form होना, image का size is larger compared to the object, which is very true. The next diagram we study, so हम ये position और आगे shift करेंगे और हम उसे रखेंगे अभी focus पे. What happens when the image object is kept at focus? तो फिर image कैसे form होगा उसका. So have a look. So in this case again, see we have lines passing. So एक ray है which is parallel, which is passing through the focus. Second ray ऐसा diverge हुआ, because of which it passed traced back through the center of curvature, and as you can see these lines are not meeting anywhere, which means ये यहाँ पे स्क्रीन के सामने तो कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है, बट इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये एक्सटेंड होते होते एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इट मे फॉर्म एन इमेज. So we say when the object is at focus, the image is formed at infinity. ये exactly अपने first diagram का opposite है. जो first diagram हमने देखा था, when the object is at infinity, image was at focus. Now when the object is at focus, image is at infinity, and the image will be very very large. यानी screen से जितना दूर form होगा image, उतना ही larger it will be formed. And the last place, or the say last position where we keep this object is nothing but between focus and pole. So object हमारा यहाँ पे place होगा. So let us see what happens when the object is placed between pole and focus. This is the object. See the light rays now which are traveling. तो ये सबके सब जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सब डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से. सो इफ यू कैन सी ये रेस दूर दूर तक कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ना यहाँ पे ना ही आगे जाके, क्योंकि सबका पाथ ही अलग अलग है. सो इन दैट केस व्हाट डू वी डू, ये जो रिफ्लेक्टेड रेस जो टकरा के यहाँ पे वापस आए हैं, हम उसका एक बैकवर्ड एक्सटेंशन लेते हैं जस्ट फॉर थ्योरी पर्पस टू नो कि अगर ये इस साइड पे यानी स्क्रीन के साइड पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, विच मीन्स अगर हम मिरर के पीछे सपोज इन्हें थियोरेटिकली पर्पस के लिए इंटरसेक्ट करके देखें, तो ये बैकवर्ड जब हम इन्हें स्ट्रेच करते हैं देन दे मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर. बट वी ऑल नो कि मिरर के पीछे जाके हम कभी भी इमेज देख नहीं सकते हैं. तो ये सिर्फ अपना स्टडी पर्पस या थियोरेटिकल प्रैक्टिस के लिए यूज होता है. So for that purpose we stretch it backwards and we see that they meet at a point,
and we can consider that the image is formed over here. Now as we know that this image can't be seen, क्योंकि स्क्रीन हमारा ये साइड पे होता है, तो इस साइड पे तो लाइंस इंटरसेक्ट होने से रहा, तो हमने सिर्फ अपने थियोरेटिकल पर्पसेस के लिए इसको बैकवर्ड स्ट्रेच करके हमने पता लगाया कि ये यहाँ पे ऐसा इमेज फॉर्म हो सकता है. सो दिस इमेज इज नॉट इन्वर्टेड, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी फॉर्म में इमेज आया है. ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, इरेक्ट है, तो इमेज भी इरेक्ट है. इट इज नॉट इन्वर्टेड, उल्टा नहीं आया. इसीलिए ये जो लास्ट डायग्राम है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, वी से द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मतलब विच इज स्ट्रेट, virtual matlab something that is imaginary, because we know that this is only the imagination part which we have studied for our purpose. So the last diagram also confirms that when the object is between pole and focus, the image is formed behind the mirror. Nature of the image is erect and virtual. Erect because it is straight, virtual because it is imaginary, and size is magnified. Magnified obvious क्योंकि ये object का size है, ये रहा image का size. So this was all about your ray diagrams. तो ये ऐसे 6 ray diagrams यहाँ पे वीडियो में जिस ऑर्डर में दिए हैं आपको उसी ऑर्डर में स्टडी करना है. टेक्स्ट बुक में इस साल आई डोंट नो व्हाई द इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड उल्टा. ये फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दिस शुड हैव बीन द ऑर्डर. सो व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट ड्रॉ दिस रे डायग्राम. रे डायग्राम के रूल्स जो मैंने बोले थे पहले 3 बार आपको वो सबमिट करने हैं. उसके बाद आप ये जो रे डायग्राम्स है सारे वो 2-2 बार ड्रॉ करके सबमिट करोगे. एंड वंस यू ड्रॉ दिस रे डायग्राम यू विल ऑल्सो बाय हार्ट दिस टेबल, राइट इट ट्वाइस एंड सेंड मी. दिस विल बी योर होमवर्क. अब ये जो रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं उसका टेक्निक है, उसके मेजरमेंट्स है. सो मैं यहीं पे इसी वीडियो में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना. आप प्रोट्रैक्टर यूज करके ये रे डायग्राम्स यू कैन सॉल्व और यू कैन ड्रॉ दिस. सॉरी, जब प्रोट्रैक्टर यूज करके मेक श्योर कि वो ऐसा एकदम सी स्ट्रक्चर भी ना लगे. इसमें कैसा ऐसा थोड़ा फ्लैट बीच में और थोड़ा सी है, वैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए. प्रोट्रैक्टर यूज करो. मिरर का एग्जैक्टली सेंटर पे यू विल मेक अ लाइन विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे आप पोल मार्क करोगे. पोल से फोकस विल बी 2.5 सेंटीमीटर एंड फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी 2.5 सेंटीमीटर. आई रिपीट वंस अगेन, पोल से फोकस द डिस्टेंस इज 2.5, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस विल बी 2.5. यही मेजरमेंट्स आप लोगे. और ये जो ऑब्जेक्ट है फिर चाहे आप किसी भी पोजीशन पे रखो, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी 2 लाइन्स और से 1.5 सेंटीमीटर. 1.5 से 2 के बीच में लेना, बट 1.5 लोगे या ये जो आपके बुक्स की जो 2 लाइन्स होती है वो 2 लाइन तक लोगे, तो ये सारे जो इमेजेस जैसे फॉर्म हुए हैं वो बहुत करेक्टली फॉर्म होंगे. So these are the measurements. With this measurements only exactly you will draw the diagrams, and if you follow these measurements then you will get the diagrams correct. So make sure you submit all the homework today itself. I'll repeat it once again. Ray diagrams के जो rules है वो 3 बार लिखने हैं with diagrams, और ये जो actual ray diagrams है 6 के 6 diagrams आपको 2 बार practice करके submit करना है. And once you are done with this diagrams, then you will be by hearting this table and you will be writing it twice and submitting it today itself. So this was all about for today's lecture. If any doubt, please let me know. And also I am sending a reference video. वो जो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट है आपके टेक्स्ट बुक में, उसके लिए एक रेफरेंस वीडियो मिला है. हार्डली 3 to 4 minutes का वीडियोस है. So I would request everyone to go through it. So that will help you clear your concept in a better way. Thank you.